Good evening, friends. Welcome to WSCCI Wellness and Wellbeing Council, गुजरात. मैं हूं प्रेरणा वासवानी, स्टेट प्रेसिडेंट ऑफ WSCCI वेलनेस एंड वेलबींग काउंसिल गुजरात. और मैं एक फाउंडर भी हूं प्रेरणा स्प्रेडिंग इंस्पिरेशन, जिसमें मैं डिफरेंट इंस्पायरिंग स्टोरीज लेकर आती हूं और प्लस मैं कोलैबोरेशंस करती हूं इमर्जिंग ब्रांड्स का. और आज हमने कोलैबोरेशन किया हुआ है सोनिया जी के साथ, जो नेशनल प्रेसिडेंट है WSCCI एनिमेशन एंड एंटरटेनमेंट काउंसिल. सो आज हमारा इंडिपेंडेंस डे स्पेशल है. आई कैन से कि इंडिपेंडेंस वीक स्पेशल है. और आज हमारे साथ जो है एक ऐसे इंसान है जिन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया हुआ है. सो आज हम उनकी जर्नी जानते हैं कि उन्होंने कैसे देश के लिए काम किया और अभी वो कैसे काम कर रहे हैं एज अ हिंदी प्रोफेसर. और बहुत सारी चीजें हैं जानने के लिए उनके साथ. और देशभक्ति के लिए हम जितना कुछ करें उतना कम है. सो फ्रेंड्स, लेट मी इंट्रोड्यूस डॉक्टर भगवती प्रसाद उपाध्याय जी सर. अ ग्रेट सैल्यूट टू हिम. उन्होंने बहुत कुछ किया हुआ है. उन्होंने जो है 15 साल के लिए नेवी में काम किया हुआ है. प्लस उसके बाद उन्होंने एज ए हिंदी प्रोफेसर काम कर रहे हैं वो सिंस 20 इयर्स. और उन्होंने PhD किया हुआ है एंड मास्टर्स किया हुआ है हिंदी लिटरेचर में. उसके साथ साथ उन्होंने एक्सीलेंस किया हुआ है इन टीचिंग एंड राइटिंग. उन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी हुई है, टेक्स्ट बुक्स लिखे हुए हैं, रिसर्च पेपर्स लिखे हुए हैं. एंड नन अदर देन उनको बहुत सारे अवार्ड्स मिले हुए हैं, जिसमें एक स्पेशल अवार्ड है कारगिल ऑपरेशनल मेडल, लॉन्ग सेवा मेडल एंड मैनी मोर. बहुत बड़ी लिस्ट है. सो आई कांट इन्फॉर्म यू कि इतना कुछ किया हुआ है उन्होंने. एंड इट्स माई प्रिविलेज, इट्स माई ऑनर टू इंट्रोड्यूस ऑन माई प्लेटफॉर्म. सो प्लीज बी ऑनलाइन. लेट्स वेलकम डॉक्टर भगवती प्रसाद उपाध्याय जी सर. Thank you so much for your kind words and generous introduction. First of Jai all, Hind sir, and a very great salute to you sir. And really you have done a great job. और मेरा तो बहुत बड़ा सौभाग्य है सर, मैं आपसे जुड़ पाई हूँ, आपको मैं मेरे प्लेटफॉर्म पे जो है बुला पाई हूँ. रियली रियली ग्रेट सर. thank you, तो ma'am. प्लीज Thank you. आप अपने बारे में बताइए कि आपकी जर्नी एज ए नेवी ऑफिसर कैसे स्टार्ट हुई थी सर. Ji. First of all, I would like to congratulate Miss Prerna S. Vaswani madam, Miss Sonia Lamba madam, and all the dedicated members of organizing committee from WICCI for hosting such a meaningful program on the auspicious occasion of Independence Day. It is my honor and privilege to be grateful to the organizers for inviting me today. I am also thankful to all the online participants of today's events. Thank you, ma'am. Thank you for inviting me. रियली Uh, ग्रेट सर. my journey starts from I belong to a village known as Kholigaon, which is situated in Bagesar district of Uttarakhand. Earlier, it ओके. was in Almora district when Miss Mayawati was Chief Minister of UP. Then the Bagesar Tehsil was developed as district. Now I belong to village Kholigaon from district Bagesar, Uttarakhand. And I was in the Navy for 15 years from 1988 to 2003. And from 2003 onwards, I have been working in degree college and I have been teaching to my students, not only from India, but also from abroad. वाओ. So my journey starts like this. My father was chief pharmacist in district hospital Pithoragarh, and he wanted me to become a doctor. And I came to Lucknow with my uncle, and I studied there in Lucknow for 1 year. My subject combination was zoology, botany, and chemistry in BSc Part 1, and I appeared in combined pre-medical test, but unfortunately I could not clear that. Then after that, ओके. my elder brother-in-law, my jijaji, uh, elder brother of my jijaji,
Colonel D.D. Pathak. Now he is retired and he is living in US with his children. At that time, he was major in Indian Army Artillery, and he was posted in Jammu and Kashmir. And Major D.D. Pathak at that time has inspired me, has guided me, and has motivated me and helped me to join the Indian Navy. With his Wow. guidance and help, I joined the Indian Navy in 1988, and that time from Jammu and Kashmir, I was recruited in Navy. I passed my physical examination, medical examination, and written examination. Out of 6 candidates, 2 of us were selected. One local, Wow. my batchmate was there, Mr. Ajit Pathania, and myself, 2 of us, we were recruited from the Jammu and Kashmir uh, recruitment center, and we joined INS Chilka, our training school in Odisha, district Puri, that is in district Puri. So there I did my basic training. As a sailor, I got recruitment in the Indian Navy, and then after that I did my ship training in INS Ranveer, and after that I went on leave. Then I joined INS Valsura, which is situated in Jamnagar district of Gujarat, for my professional training. I did my professional training in electrical branch there, and after completion of my professional training from INS Jamnagar, Gujarat, I again joined INS Ganga, a frigate ship in Mumbai. So my 13-year service was in Mumbai, and last 2 years I was an instructor in INS Valsura, Jamnagar, Gujarat, where we used to teach, train the BTech and BE and Polytechnic students for the Navy. After that, I was posted in the INS Ganga, and we have sailed INS from there to Malaysia for Wow. international review. There was a goodwill visit between Malaysia and India. So from India, 2 ships were deployed there to attend that international fleet review, INS Ganga and INS Kukri. I was working on INS Ganga at that time, and we have attended that international fleet review, and our fleet was reviewed by then President of Malaysia, Dr. Mahathir Mohamad Sahab. रियली अमेजिंग सर। और बहुत ही जान के अच्छा लगा आपकी जर्नी के बारे में, बहुत ही इंस्पायरिंग जर्नी है सर। तो Thank you, मैं madam. जानना चाहूंगी कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा नेवी में 15 साल का, और प्लस आपका कैसा ग्रोथ रहा एज अ पर्सनल एंड प्रोफेशनल। इंडियन नेवी में मैडम, आज जो मैं लिख रहा हूँ या आज जो मैं बोल रहा हूँ, वह सब इंडियन नेवी की अच्छी ट्रेनिंग की बदौलत है। इंडियन नेवी हो, चाहे इंडियन आर्मी हो, चाहे इंडियन एयरफोर्स हो, तीनों आर्म्ड फोर्सेस में द क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग इज वेरी हाई, और वहाँ पर यस। बहुत अच्छी तरह से ट्रेनिंग दी जाती है। चाहे आप किसी भी बैकग्राउंड के हों, भले ही आप साइंस बैकग्राउंड के हों, चाहे आर्ट्स के हों, कॉमर्स के हों, चाहे लॉ के हों, मैनेजमेंट के हों, टेक्निकल हों, नॉन टेक्निकल हों, चाहे आप किसी भी बैकग्राउंड से, एकेडमिक बैकग्राउंड से हों, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में द क्वालिटी ऑफ स्टैंडर्ड इज वेरी हाई. That is why the Indian Armed Forces people are doing well during the service and after the service. यस यस, बहुत ही सही कहा आपने। इतना अच्छा क्वालिटी ट्रेनिंग रहता है कि वो देश के लिए जो है बहुत कुछ कर जाते हैं, इवन जो है अपनी जान भी गंवा देते हैं। उनको वो भी नहीं टेंशन रहता है कि हम क्या करेंगे, और वो बस देश के लिए जीते ही रहते हैं। बहुत ही इंस्पायरिंग लगता है। एंड आई एम ऑल्सो अ ग्रैंड डॉटर ऑफ अ पुलिस पर्सन। माय ग्रैंडफादर वाज एसएसपी। तो मेरे अंदर भी कहीं ना कहीं जो है देशभक्ति की भावना है, और मुझे भी गर्व है मेरे दादाजी पे। बहुत ही उनसे इंस्पिरेशन मिलता था, और बहुत ही खुशी होती थी उनके साथ रह के।
तो जैसे आपको जो है कारगिल ऑपरेशन मेडल भी मिल चुका है फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, तो जी आप उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे कि कारगिल वॉर के बारे में आप कुछ जानकारी देना चाहेंगे जी कि इसके बारे में दरअसल सिविलियंस को बहुत कम पता होता है। जी जी अ, सर। दरअसल बात ऐसी है कि दो बातें होती हैं। एक तो वॉर होता है जब डिक्लेयर किया जाता है पार्लियामेंट के द्वारा, और हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट साहब के द्वारा जब जी वॉर डिक्लेयर होता है तो उस समय देश में इमरजेंसी लगाई जाती है, बॉर्डर सील हो जाते हैं, तो युद्ध की स्थितियां अलग होती हैं और उसमें इमरजेंसी की स्थिति होती है। और जो वॉर के टाइम पर जो इंडियन सिटीजन्स के जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं उसके बारे में भी हम बात नहीं कर सकते हैं। तो उस समय जी टोटल इमरजेंसी में जो है हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक मार्शल ऑफिसर नियुक्त होते हैं, और मार्शल ऑफिसर एक ब्रिगेडियर रैंक के ऑफिसर होते हैं जिनके अंडर वहाँ के कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उनके इंस्ट्रक्शन में काम करते हैं और पूरा देश एक साथ मिलजुल के काम करता है। लेकिन जो कारगिल ऑपरेशन था ये एक वॉर नहीं था बल्कि एक ऑपरेशन था। इस तरह के ऑपरेशन होते रहते हैं। कुछ सालों पहले म्यांमार में, बर्मा में भी ऑपरेशन हुआ था। कुछ साल पहले क्रॉस बॉर्डर जो ये स्ट्राइक हुई थी वो होती रहती है। तो ये पीस टाइम में इस तरह के ऑपरेशन होते रहते हैं। तो ये एक तरह का वॉर नहीं था बल्कि एक तरह का ऑपरेशन था। तो इस ऑपरेशन में डायरेक्टली तो इंडियन आर्मी इन्वॉल्व थी और इंडियन एयरफोर्स इन्वॉल्व थी। हुआ ये था कि कारगिल ऑपरेशन के समय जो पाकिस्तान की जो सेना थी वो कारगिल हिल के ऊपर और द्रास सेक्टर के ऊपर, वो हाइट में, ज्यादा हाइट में वो लोग 5,000 से ज्यादा सैनिक उनके बैठे हुए थे। और हमारी जो इंडियन आर्मी थी वो नीचे थी, ग्राउंड में थी, और वहां से उसको ऊपर चढ़ना था। जैसे जैसे हमारी इंडियन आर्मी जो इन्फेंट्री है या उसके बाद फिर हमारी जो आर्टिलरी है वो धीरे धीरे जब आगे बढ़ती थी तो ऊपर से बम्बार्डमेंट करते थे तो हमारी सेना को वापस लौटना पड़ता था। तो उस समय फिर हमारी जो स्वीडिश गन थी, बोफोर्स गन, हमारे जैसे मैंने बताया कि हमारे ब्रदर इन लॉ कर्नल पाठक साहब ने उसका ट्रायल भी लिया था। तो उन्होंने हमें बताया था कि ओके जो ब्रिटिश गन है, बोफोर्स गन, बहुत ही इफेक्टिव गन है। और कारगिल ऑपरेशन में हमको जो विजय दिलाई वो बोफोर्स गन ने ही दिलाई। स्वीडिश गन है, बहुत इफेक्टिव पावरफुल गन है। तो इंडियन आर्मी जो है आर्टिलरी स्पेशली ये जो गन है बोफोर्स गन को लेके धीरे धीरे नीचे से ऊपर पहाड़ी की तरफ चढ़ती गई। 45 डिग्री एंगल उन्होंने बैरल को लिया और बॉम्बार्डमेंट फायरिंग करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ी। और ऊपर से जो है इंडियन एयरफोर्स ने एयर कवर दिया और धीरे धीरे उन्होंने पूरे हिल के ऊपर कब्जा किया। ये तो आर्मी और नेवी डायरेक्ट इन्वॉल्व थी इसमें। लेकिन उसमें जो आर्मी और एयरफोर्स, सॉरी, लेकिन जो नेवी थी उसने हमारे जितने भी समुद्री सीमाएं हैं वो यहाँ आपके कराची बॉर्डर से लेके उधर अंडमान निकोबार आइलैंड तक पूरी जो समुद्री सीमा है उसको सील करके रखा था हमने। और मैं उस समय आईएनएस उदयगिरी में पोस्टेड था और हमारे अलग अलग शिप्स को अलग अलग जिम्मेदारियां दी गई थी, अलग अलग ड्यूटीज दी गई थी। तो आप जानते हैं कि जो मुंबई है, मुंबई इज कॉमर्शियल कैपिटल ऑफ इंडिया, और यहाँ बहुत सारे आर्थिक संवेदनशील संस्थान हैं और इकोनॉमिक जोन्स हैं यहाँ पर। और अगर वहाँ पर बॉम्बार्डमेंट हो जाता तो काफ़ी इकोनॉमिक जो है लॉस होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, इंडियंस को। इसलिए हमारे शिप को जो है बॉम्बे हाई की जिम्मेदारी दी गई थी और हमने बॉम्बे हाई को की सिक्योरिटी और सेफ्टी का काम उसमें किया। और हमारे शिप ने हमने 40 डेज 50 डेज तक पूरा अरेबियन सी में बॉम्बे हाई के चारों तरफ हमने पेट्रोलिंग की और उसको प्रोटेक्ट किया। ठीक उसी तरह से कुछ शिप्स को दूसरे जो इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक जोन्स थे उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई थी। उनकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का ख्याल अलग अलग शिप रख रहे थे। और हमारा जो ईस्टर्न कमांड था वो भी हमको मदद कर रहा था। तो ऐसा नहीं है कि कारगिल में ऑपरेशन हो रहा था केवल आर्मी काम कर रही थी। उनको एयर कवर देने का काम तो एयरफोर्स ने किया। और जो जितने भी हमारे, चाहे वो अरेबियन सी हो, चाहे वो इंडियन ओशन हो, चाहे बे ऑफ बंगाल हो, पूरा जो 3 तरफ से समुद्र है हमारे यहाँ, उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भारतीय नौसेना के पास होती है। और भारतीय नौसेना ने उसको बखूबी निभाया कारगिल के ऑपरेशन के समय। एक तरह से उनको जो सपोर्ट चाहिए था वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली भारतीय सेना ने भी दिया कारगिल ऑपरेशन के समय। जी जी जी।
बहुत ही जानकर खुशी हुई एंड रियली प्राउड टू नो कि नेवी जो है इतना कुछ करती है हमारी सुरक्षा के लिए। जो भी समुद्र तट हैं उनके वहां पे जो है इतना सारा सुरक्षित रखती है हमें, दिन रात मेहनत करते हैं। और बहुत ही जानकर खुशी हुई क्योंकि हम सिविलियंस को जो है इतना जानकारी नहीं मिल पाती है इन चीजों के बारे में। तो थैंक यू जी सो मच सर, आपने जो है इस बारे में हमें थोड़ा नॉलेज दिया, हमें बताया कि नेवी जो है इतना कुछ कर रही है हमारी देश की सुरक्षा के लिए। और जैसे जी अभी जो इसके है साथ में आप एक जो है, चीज और इसके साथ जी में सर, एक चीज और जोड़ना चाहूंगा। ये तो खैर हो गई ऑपरेशन के समय की बात। पीस टाइम में भी हमारी जो इंडियन आर्म फोर्सेस हैं बहुत अच्छा काम करती हैं। जैसा आपको पता है, जब भी नेचुरल कैलेमिटीज आती हैं देश में, चाहे वो बाढ़ जी आए, जी चाहे भूकंप आए और चाहे सुनामी आए, तो हमारी जो है तीनों फोर्सेस हमेशा तैयार रहती हैं सिविलियंस को मदद करने के लिए। और 26 जनवरी 2000 में जब भूकंप आया था भुज में, तो आपको पता होगा जो गुजरात का जो पश्चिमी इलाका है वहाँ काफी जी बर्बादी हुई थी, काफी नुकसान हुआ था। और उस दिन लकीली हमारा जो आईएनएस वलसुरा था, वहां पर परेड ग्राउंड में हमारे करीब 700-800 ट्रेनीज थे, 1000-1200 करीब ट्रेनीज थे, और 700-800 हमारे स्टाफ के लोग, करीब 2000 लोग वहां पर परेड ग्राउंड में मौजूद थे उस समय जिसमें भूकंप आया था। तो उस समय हमारे जो वहां पर ट्रेनीज थे और हमारा जो स्टाफ था उसको कुछ नुकसान नहीं हुआ। केवल एक दो कुछ लोगों को कुछ दीवारें गिर गई थी वहां स्टाफ क्वार्टर की, तो वहां से कुछ लोगों को चोटें आई थी, लेकिन बड़ा नुकसान कुछ नहीं हुआ हमारे आईएनएस वलसुरा में। और उसके बाद फिर भुज में जो है रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए, क्योंकि सबसे नजदीक में हमारा वहाँ आईएनएस वलसुरा था जामनगर में वैसे आर्मी नेवी एयरफोर्स तीनों रहती हैं, जी तत्पर रहती हैं, हमेशा चौकन्नी रहती हैं। तो वहां पर हमने हमारे ट्रेनीज ने उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन किया, और गांव था पूरा जो टूट के पूरा बर्बाद हो गया था, सारे घर टूट गए थे। तो फिर उसमें हमारी नेवी ने हेडक्वार्टर से पैसा आया और उनको पैसे की मदद की नए घर बनाने के लिए, और हमारे ट्रेनीज ने वहां कई महीनों तक जो है श्रमदान किया, रेस्क्यू ऑपरेशन किया, और सबके लिए एक जैसे घर बनाए, और गांव में वाह स्कूल खोला, और गांव में पंचायत घर बनाया, और गांव में बच्चों के खेलने के लिए पार्क बनाया। पूरा गांव ध्वस्त हो गया था, पूरे गांव को फिर से बसाया आईएनएस वाह वलसुरा ने, इंडियन नेवी ने। तो इस तरह के भी काम करते हैं। यहाँ मुंबई की बात करें तो अभी कुछ साल पहले यहाँ एक परेल में एक ब्रिज टूट गया था, इंडियन रेलवे का ओवर ब्रिज था जो कि लोअर परेल और अपर परेल को जोड़ता है, सेंट्रल लाइन और हार्बर लाइन को जो जोड़ता है, वो ब्रिज टूट गया था। तो उसको हमारी इंडियन आर्मी ने रिपेयर किया, रिपेयर नहीं किया, उसको पूरा नया बनाया उन्होंने, और कुछ ही हफ्तों में बना दिया। अगर उसी काम को इंडियन रेलवे करती या कुछ सिविल की दूसरी इंजीनियरिंग की एजेंसीज करती तो उसको शायद कई महीने, साल भर भी लग सकता था, 1.25 साल भी लग सकता था, लेकिन इंडियन आर्मी ने उसको कुछ ही महीनों में तैयार कर दिया। जो सेंट्रल लाइन और वेस्टर्न लाइन है उसको, दोनों रेलवेज को उन्होंने जोड़ दिया। तो इस तरह के काम हमारे आर्मी के लोग करते हैं, नेवी के लोग करते हैं। पीस टाइम में भी बहुत सा नेचुरल कैलेमिटीज के समय, या फिर कभी भी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन होती है, कभी भी वोटिंग होती है, पोलिंग होती है, वहां भी आर्मी वालों की ड्यूटी लगी रहती है लॉ एंड ऑर्डर को यस संभालने के लिए। और इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि पीस कीपिंग फोर्स में, विदेशों में पीस कीपिंग फोर्स में यूएन के अंडर में जब जाते हैं, यूएनओ के अंडर में, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में जब पीस कीपिंग फोर्सेज जाती हैं, तो जो इंडियन आर्मी है उसका सबसे अच्छा रिकॉर्ड रहा है अब तक, और सबसे ज्यादा कैजुअलिटी, सबसे ज्यादा सुप्रीम सेक्रीफाइस हमारे इंडियन आर्मी के जवान करते हैं, चाहे वो साउथ अफ्रीका में जाकर करें, चाहे कहीं और जाएं। यूएनओ के अंडर पीस कीपिंग फोर्स में भी हमारा रिकॉर्ड इंडियन आर्म फोर्सेस का बहुत अच्छा रहा है। जी रियली रियली बहुत ही खुशी हुई जान के कि नेवी एंड आर्म फोर्सेस जो भी है वो इतना कुछ कर रहे हैं इंसानों के लिए, इंसानियत के लिए। और प्लस हमें जो है हम चैन से सो सकें उसके लिए वो इतना सुरक्षा हमें रख रहे हैं। खुद जो है जागते हैं पूरा रात, और खाना पीना भी नहीं इतना रहता है उनका। तो बहुत ही रियली हैट्स ऑफ टू देम। और दिल से सलाम है उन सभी सोल्जर्स को जिन्होंने शहादत दिया है, जिन्होंने इतना कुछ, उनकी वजह से हमें आज़ादी मिली है। और दूसरा मैं जानना चाहूंगी कि टीचिंग जो है आपका आजकल का जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है आपके करियर का। तो आपकी टीचिंग जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? एज आप जो है पढ़ाते थे सेंट जेवियर्स कॉलेज में, और क्या मोमेंट्स थे आपके, स्पेशल मोमेंट्स वहां पे सर? जी तो ये जर्नी मेरी स्टार्ट होती है मैडम
पढ़ाने की मैं 13 साल आई वाज वर्किंग ऑन बोर्ड वॉरशिप इन मुंबई, एंड लास्ट 2 years आई वाज पोस्टेड इन INS वलसुरा जामनगर गुजरात एज एन इंस्ट्रक्टर. I used to teach there basic electricity, basic electronics, nuclear, biological, chemical warfare, firefighting, damage control, voice communication, data transmission, and such technical subjects I used to teach there. तो 2 साल मैंने वहां पर इंस्ट्रक्टर की ड्यूटी की. तो हुआ ये कि एक बार जब हमारा इंस्पेक्शन चल रहा था, हमारे सदर्न नेवल कमांड के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ साहब, एडमिरल साहब वहां इंस्पेक्शन के लिए आए हुए थे. तो मैं क्लास ले रहा था वहां पर बेसिक इलेक्ट्रिसिटी स्कूल में. तो जैसे ही मैं क्लास ले रहा था तो बाहर से एडमिरल साहब जो है हमारे कमांडिंग ऑफिसर और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर साहब के साथ और ट्रेनिंग कैप्टन के साथ इंस्पेक्शन के लिए आए. तो उन्होंने देखा कि जो इंस्ट्रक्टर अंदर पढ़ा रहा है, कि जो मैं पढ़ा रहा था वहां पर, तो उन्होंने देखा कि इसके अंदर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है और ये अपना लेसन जो है पूरी अच्छी तरह से तैयार करके आया हुआ है. और मेरी जो वॉइस थी वो लाउड एंड क्लियर थी. और उसमें क्योंकि कुछ फॉरेन के भी ट्रेनीज थे, श्रीलंका और मॉरिशस नेवी, मालदीव्स नेवी के लोगों को भी हम ट्रेन करते हैं, फॉरेन नेवी के लोगों को हम लोग ट्रेन करते हैं. तो हमारे यहाँ इंडियन नेवी के भी ट्रेनीज थे और फॉरेन नेवी के भी ट्रेनीज थे. तो उन्होंने कहा ये जो इंस्ट्रक्टर है इसके अंदर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस दिखाई पड़ रहा है. वो मेरे दरवाजे के सामने, मेरे क्लासरूम के सामने, दरवाजे के सामने केवल 30 to 45 सेकेंड्स के लिए खड़े रहे. और उतने में उन्होंने ये ऑब्जर्व कर लिया कि जो इंस्ट्रक्टर अंदर पढ़ा रहा है, he has full confidence, he has well prepared his lesson, and his body language is very impressive, and his voice is loud and clear. तो मेरे कॉन्फिडेंस को देख के, मेरे बॉडी लैंग्वेज को देखकर उन्हें लग गया कि ये पूरी तैयारी के साथ आया है क्लास में. तो वो मेरे अंदर आए ही नहीं क्लासरूम में, वहीं से वो 45 सेकेंड के अंदर वहां से अगली क्लासरूम में चले गए. तो तब जाके मुझे ख्याल आया कि ये जो प्रोफेशन है, इतने बड़े ऑफिसर आए थे, एडमिरल साहब आए थे, और वो उन्होंने कुछ ही सेकंड्स में, 1 मिनट भी नहीं हुआ, 30 to 45 सेकंड्स के अंदर उन्होंने मुझे जज कर लिया. उनके, क्योंकि जो डिफेंस के ऑफिसर्स होते हैं उनकी ऑब्जर्वेशन पावर बहुत स्ट्रांग होती है. तो उसकी वजह से मुझे लगा कि शायद ये काम मेरे लिए बेहतर रहेगा. तो उसके बाद उन दिनों में PhD कर रहा था और मैंने गंगा में, INS गंगा में जाके BA किया था. फिर उदयगिरी में, INS उदयगिरी में फ्रिगेट क्लास में जाके मैंने BA किया था. फिर MA किया मैंने, और उन दिनों में PhD कर रहा था. और जैसे ही मेरा PhD पूरा हुआ तो 97 में जब आज़ादी के 50 वर्ष पूरे हुए तो गवर्नमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक स्कीम निकाली थी कि जो लोग सर्विस में रह के एमएड करेंगे उनको 20,000 रुपए का कैश अवार्ड मिलेगा, जो एमफिल करेंगे 25,000 रुपए का कैश अवार्ड मिलेगा, जो PhD करेंगे यूनिफॉर्म सर्विस में एंटायरली थ्रू ओन एफर्ट्स दे विल बी गिवन 30,000 रुपीज अवार्ड. तो लकीली 97 में मेरा MA हो गया था और मैं PhD कर रहा था. तो 2002 में मेरा PhD पूरा हुआ. मैंने डॉक्टर शिवशंकर पांडे, जो यहाँ बॉम्बे में साठे कॉलेज में हिंदी के हेड थे, बाद में कल्याण में साकेत कॉलेज के प्रिंसिपल रहे, उनके अंडर PhD किया था. और एक तरफ हमने कारगिल ऑपरेशन में भाग लिया और दूसरी तरफ मेरी PhD पूरी हुई. तो उसके लिए आई गॉट 30,000 कैश अवार्ड फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस फॉर डूइंग PhD while working in uniform service entirely through own efforts. Luckily, I was the first person from the Navy to receive this award because this scheme was started in 97, and under that scheme, I was the first person to do the PhD. So मुझे फिर वहाँ के जो कमांडिंग ऑफिसर TS गणेशन साहब थे, उन्होंने 30,000 का चेक परेड ग्राउंड में 700-800 स्टाफ के सामने और 1200 ट्रेनीज के सामने दिया. और बाद में मुझे बड़ा सम्मान मिला वहां से आते समय. तो उसकी वजह से मुझे मेरा उत्साह और ज्यादा बढ़ गया टीचिंग की तरफ. मेरा इंटरेस्ट वो इन घटनाओं ने मुझे और ज्यादा प्रेरित किया और मोटिवेट किया कि मैं टीचिंग करूं. फिर मेरा PhD पूरा हो गया था. उसके बाद में जैसे 15 साल के बाद रिटायर हुआ तो यहाँ GR पाटिल डिग्री कॉलेज में मैंने 1 साल काम किया डोंबिवली में. उसके बाद मैंने 8 साल लगातार SNDT वुमेन्स यूनिवर्सिटी, जो कि इंडिया की फर्स्ट वुमेन्स यूनिवर्सिटी है, उससे एफिलेटेड एक कॉलेज है LJNJ महिला महाविद्यालय विले पार्ले ईस्ट में. तो वहां पर मैंने 8 साल लगातार काम किया. 8 साल काम करते हुए मैंने 2 माइनर रिसर्च प्रोजेक्ट, क्योंकि मैं हर साल एक नेशनल सेमिनार ऑर्गेनाइज करता था वहां. तो हमारी प्रिंसिपल मैडम डॉक्टर सुरेखा सावंत मैडम ने कहा कि आप हर साल एक सेमिनार ऑर्गेनाइज करते हैं नेशनल लेवल का, तो आप अपने लिए भी कुछ करिए, ये तो आप कॉलेज के लिए कर रहे हैं काम. तो फिर मैंने 2 माइनर रिसर्च प्रोजेक्ट, एक हिंदी को व्यवहारिक बनाने में भारतीय सेनाओं की भूमिका और दूसरा महाराष्ट्र और उत्तराखंड की लोक संस्कृतियों का तुलनात्मक अध्ययन. UGC से मुझे फेलोशिप मिली.
पहले माइनर रिसर्च के लिए 40,000 मिला, दूसरे के लिए 80,000 मुझे फेलोशिप मिला है। तो 2 माइनर रिसर्च वाह प्रोजेक्ट मैंने वहाँ पे किए। जी। वाह, बहुत ही बहुत ही जान के खुशी हुई कि इतना सारा आपने किया हुआ है एंड यू आर वेरी मच एक्टिव, कि ऐसा कुछ लगता ही नहीं है कि जो है कोई एज इज जस्ट अ नंबर, ऐसा फील होता है। आप इतना कुछ कर रहे हैं देश के लिए, आपने किया। अभी आप जो है बच्चों को पढ़ा रहे हैं, वो भी हिंदी लिटरेचर में, तो हमारी राष्ट्रभाषा को भी आप आगे बढ़ा रहे हैं। तो बहुत ही जानकर खुशी हो रही है इस चीज के लिए। और जैसे कि आपको जो है बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं रिलेटेड टू हिंदी लिटरेचर टीचिंग, तो आप कुछ शेयर करना चाहेंगे आपके लिटरेचर वर्क्स के बारे में, या आपके जो टीचिंग जी, मैं अपने मेथड्स हैं उस बारे विद्यार्थियों के में? बारे में अपने विद्यार्थियों के बारे में बताना चाहूँगा जी सर। कि जब मैं एलकेएनजे महिला महाविद्यालय में पढ़ा रहा था डिग्री में, तो उन दिनों में संडे को डिस्टेंस एजुकेशन में एमए को भी पढ़ाता था। एमए का ओके। लेक्चर 2 घंटे का होता है, एक लेक्चर, और मैं 2 लेक्चर लेता था। मतलब 4 घंटे में संडे को पढ़ाता था। और मैंने वहाँ 3-4 साल एसएनडीटी वुमेन्स यूनिवर्सिटी चर्च गेट में पढ़ाया। उसमें ज्यादातर जो स्टूडेंट होते थे वो या तो सर्विस क्लास होते थे, जिनकी पढ़ाई छूट गई है, वो दोबारा पढ़ते थे डिस्टेंस से, और कुछ लोग उसमें ऑलरेडी एम्प्लॉयड थे। तो उसमें मेरी एक छात्रा थी, उसका नाम था किरण सक्सेना। किरण सक्सेना मैडम जो है पहले से ही रैन इंटरनेशनल में टीचर थी, पढ़ा रही थी। उन्होंने एमए बीएड किया हुआ था, तो उन्होंने डबल एमए दूसरे सब्जेक्ट में एमए हिंदी में किया उन्होंने एसएनडीटी से। तो 2 साल मैंने उनको संडे को 2-2 लेक्चर 4 घंटा पढ़ाया संडे को। तो उसके बाद उन्होंने एमए में टॉप किया। तो उस जमाने में वाह। हमारी जो राष्ट्रपति महोदया थी, महामहिम आदरणीय प्रतिभा देवी सिंह पाटिल हुआ करती थी, तो उनके हाथों से उनको जी। पुरस्कार मिला। तो उन्होंने वाह। डिस्टेंस एजुकेशन में टॉप किया था, सबसे ज्यादा मार्क्स उन्होंने लिए थे यूनिवर्सिटी में हिंदी में, रेगुलर वालों से भी ज्यादा मार्क्स लिए थे उन्होंने। तो क्योंकि वो पहले से टीचर थी वाह। और फिर उन्होंने उनको मैंने पढ़ाया, तो गाइड किया, तो उनका और अच्छा परसेंटेज आ गया, उन्होंने टॉप किया, जी। तो उनके हाथों से उनको पुरस्कार मिला। तो वो मेरी पहली छात्रा थी जिनको राष्ट्रपति महोदया के हाथों से पुरस्कृत किया गया। तो मुझे बड़ी खुशी हुई। जैसे माता पिता को खुशी होती है बच्चों के पुरस्कार पाने में, वैसे ही शिक्षकों को भी, प्रोफेसर्स को भी खुशी होती है जब उनके विद्यार्थी अच्छा काम करते हैं, पुरस्कार पाते हैं। तो वो मेरी पहली छात्रा थी जिनको राष्ट्रपति महोदया के द्वारा पुरस्कृत किया गया। उसके बाद उन्होंने अपने कॉलेज में जाके अपनी प्राचार्य महोदया को, उन दिनों केरला की भुवनेश्वरी मैडम वहां प्राचार्य हुआ करती थी, उनको बताया, और मुझे 26 जनवरी को उन्होंने इनवाइट किया एज ए चीफ गेस्ट अपने कॉलेज में। और 26 जनवरी को जाके मैं उनके कॉलेज में फ्लैग होइस्ट करके आया, झंडा रोहण करके आया, और बच्चों के परेड की सलामी, बैंड की सलामी लेके आया, बच्चों को पुरस्कार दे आया अपने हाथों से। और उस समय मेरा छोटा वाह। भाई प्रेम प्रकाश भी मेरे साथ था, वो भी मेरे साथ स्टेज पे बैठा। और तो उन्होंने मुझे सम्मानित किया कि आपकी वजह से मेरे अच्छे मार्क्स आए, एमए में मैंने टॉप किया और राष्ट्रपति महोदय ने मुझे पुरस्कृत किया। तो उन्होंने उसके बदले मुझे जो है एक एज ए टोकन ऑफ ग्रेटिट्यूड उन्होंने इनवाइट किया एज ए चीफ गेस्ट मुझे 26 जैन को अपने कॉलेज में, और मैं उनके कॉलेज में मुख्य अतिथि के रूप में, वाह। चीफ गेस्ट के रूप में जाके झंडा रोहण करके आया और बच्चों से मिल के आया, उनको पुरस्कृत करके आया। तो ये एक छात्रा थी। और दूसरी छात्रा इसी महाविद्यालय में सेंट जेवियर्स कॉलेज में मैं पिछले 6 वर्षों से काम कर रहा हूं। तो वहां पर एक छात्रा थी मेरी बीए में, मिस मोनाली गुप्ता, जिनको महाराष्ट्र के गवर्नर, महाराष्ट्र के महामहिम भगत सिंह कोश्यारी जी उस समय थे, उनके हाथों से सम्मानित किया गया था, क्योंकि उन्होंने एमए बीए फाइनल में, बीए सेकेंड ईयर में हिंदी में एक पेपर में 97, एक पेपर में 95 मार्क्स प्राप्त किए थे। और उसके अलावा उन्होंने एक हमारा अंतस करके एक फेस्टिवल होता है, जो 3 दिन का फेस्टिवल होता है, जिसे हमारी पूर्व प्रोफेसर हेड और वाइस प्रिंसिपल थी हमारे यहाँ डॉक्टर आशा नेथानी दायमा मैडम, उन्होंने शुरू किया था 30-35 साल पहले, 35-36 साल पहले। अंत से एक हमारा वार्षिकोत्सव होता है, तो वार्षिकोत्सव का भी उन्होंने 3 दिन तक उसकी वो सेक्रेटरी थी। उसके अलावा उन्होंने बहुत सारे जॉब मतलब हमारे विद्यार्थियों के लिए करियर गाइडेंस के बहुत सारे लेक्चर्स ऑर्गेनाइज किए थे हमने। एक आईपीएस ऑफिसर हमारे पहचान के हैं, आईजी साहब हैं, ओके। आईपीएस ऑफिसर कृष्ण प्रकाश साहब महाराष्ट्र के, तो उनको इनवाइट किया था बच्चों को यूपीएससी परीक्षा के लिए गाइड करने के लिए। तो इस तरह के कवि सम्मेलन मोनाली गुप्ता जी ने आयोजित किया। इस तरह से बहुत सारे इवेंट उन्होंने हिंदी के को करिकुलर एक्टिविटीज में भाग लिया। तो उनको हमारे
महाराष्ट्र के गवर्नर साहब ने सम्मानित किया था। तो ये 2 उपलब्धियों को मैं समझता हूँ कि हमारे विद्यार्थियों की ये सबसे बड़ी उपलब्धियां थी अब तक की। जी, उसके अलावा जी पिछले जी 5 वर्षों में मैं यहाँ रह रहा हूँ, उससे पहले मैं 3 वर्ष यहाँ डोंबिवली में गर्ल्स कॉलेज में था। उससे पहले मैंने आईसीएसई सीबीएसई के लिए कक्षा 1 से कक्षा 8 तक की रैपिड रीडर, टेक्स्ट बुक और ग्रामर बुक 3 पुस्तकें हमने कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के पुस्तक विद्यार्थियों के लिए लिखी, जो कि 150 से ज्यादा सीबीएसई आईसीएसई के स्कूलों में चल रही हैं। उसके बाद मैंने जब यहाँ ज्वाइन किया इस कॉलेज में, तो यहाँ मैंने विद्यार्थियों को अंतर महाविद्यालयीन प्रतियोगिताओं के लिए, हिंदी प्रतियोगिताओं के लिए, वो भाषण प्रतियोगिता हो, चाहे वो निबंध लेखन प्रतियोगिता हो, कथाकथन प्रतियोगिता हो और गायन प्रतियोगिता हो, उसके लिए तैयार करके मैं भेजता था विद्यार्थियों को। कविता पाठ प्रतियोगिता हो, तो उसमें मेरी एक छात्रा जिसके पिताजी नेवी में ही थे, मिस साक्षी चौहान, और एक हमारे यहाँ विजुअली चैलेंज बच्चा था शुभम गुप्ता, दोनों ने मिलके हमारे लिए कविता पाठ में रोलिंग ट्रॉफी लेकर आए हमारे डिपार्टमेंट के लिए, हमारे कॉलेज के लिए। उसके बाद 2 विद्यार्थी हमारे लिए भाषण प्रतियोगिता में रोलिंग ट्रॉफी लाए, और 2 विद्यार्थी हमारे यहाँ गायन में, जिसमें जो है जीनिया चटर्जी और नूपुर जोशी, जो वो भी विजुअली चैलेंज बच्ची थी हमारी, तो गायन प्रतियोगिता में रोलिंग ट्रॉफी लाई। मिस मोनाली गुप्ता हमारे लिए 3 बार प्रथम पुरस्कार लाई भाषण प्रतियोगिता में। इसके अलावा 15 विद्यार्थी हमारे यहाँ, एक विद्यार्थी हमारे यहाँ बांद्रा में एक नेशनल कॉलेज है, वहां 60 से ज्यादा प्रतिभागी थे, उसमें स्टोरी टेलिंग कंपटीशन में हमारे लिए फर्स्ट प्राइज लेकर आई। ऐसे 15 विद्यार्थी प्रथम पुरस्कार लेकर आए हमारे लिए। तो मैंने उनको लेटर ऑफ अप्रिशिएशन दिया एक। तो जब मैं लेटर ऑफ अप्रिशिएशन लिख रहा था तो लेटर हेड में जगह कम पड़ जाती थी, तो मैंने उनके लिए एक आर्टिकल लिखा सबके लिए और उसको कंपाइल किया। और कुछ विजुअली चैलेंज बच्चे, जैसे हमारे यहाँ डॉक्टर प्रतिभा नैथानी मैडम की एक छात्रा आईएएस ऑफिसर बन चुकी हैं, मिस प्रांजल पाटिल जो यहीं उल्लासनगर की रहने वाली हैं, पॉलिटिकल साइंस से उन्होंने यहाँ बीए किया था, दिल्ली यूनिवर्सिटी से उन्होंने एमए किया था, और उन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में तो यूपीएससी में नहीं निकल पाई, सेकंड में निकल गई। आज वो केरला में तिरुवनंतपुरम डिस्ट्रिक्ट की डिप्टी कलेक्टर हैं, डॉक्टर प्रतिभा नैथानी मैडम की छात्रा हैं। तो इस तरह से हमारे यहाँ वो भारत की पहली विजुअली चैलेंज महिला आईएएस ऑफिसर हैं। तो इस तरह के विद्यार्थी हमारे यहाँ बहुत अच्छा काम करते हैं। उनके लिए हमारे कॉलेज में अलग से XRCBC करके एक अलग से सेल है, जिसमें 17-18 विद्यार्थी विजुअली चैलेंज हैं हमारे यहाँ। और बाकी पहले भारत सरकार ने केवल 6 या 7 प्रकार की डिसेबिलिटीज को आइडेंटिफाई किया था, अभी भारत सरकार ने 21 प्रकार की डिसेबिलिटीज को आइडेंटिफाई किया है, जिसमें विजुअली चैलेंज बच्चे हैं, डेफ एंड डम हैं, और लोकोमोटर डिजीज से पीड़ित बच्चे हैं, ऑर्थोपेडिकली डिफरेंटली एबल बच्चे हैं, और ऑटिज्म से पीड़ित बच्चे हैं, डिसलेक्सिया के बच्चे हैं, और स्लो लर्नर हैं। इस तरह से 21 प्रकार की डिसेबिलिटी से पीड़ित बच्चे हमारे यहाँ, उनके लिए अलग से हमने सेल खोल के रखा है हमारे कॉलेज ने, और वहां पर उनके लिए अलग से स्पेशल टीचर रखे गए हैं XRCBC में, और उनके लिए अलग से वर्कशॉप होते हैं। और पिछली बार मैंने 15 अगस्त को उनको हमारे एक बैंक की अधिकारी हैं सुलभा कोरे मैडम, उनके साथ मिलके हमने पिछले वर्ष 15 अगस्त को हमारे जो विजुअली चैलेंज बच्चे हैं उनको मैंने एक पेन ड्राइव गिफ्ट किया था 15-16 बच्चों को। वैसे भी हमारे कॉलेज की तरफ से उनको पेन ड्राइव और जितनी भी लॉजिस्टिक सपोर्ट होती है वो मिलती रहती है, और भी उनको फ्री शिप और स्कॉलरशिप मिलती है, जो भी सुविधाएं उनको चाहिए। और हमारे कॉलेज के जो XRCBC के जो टीचर्स हैं वो पूरे महाराष्ट्र और दूसरे जो स्कूल हैं, स्पेशल स्कूल, उनके टीचर्स को भी ट्रेन कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। तो उन बच्चों के लिए मैंने एक किताब लिखी थी, उसमें विजुअली चैलेंज बच्चों को मैंने जोड़ा आर्टिकल में। इस तरह से वो और कुछ वॉलंटियर्स हमारे यहाँ अलग अलग फेस्टिवल में बहुत अच्छा काम करते हैं हमारे सेंट जेवियर्स कॉलेज में, तो उनके बारे में आर्टिकल लिखा। तो वो 65-70 बच्चों के बारे में मैंने एक आर्टिकल लिखा था और उसको मैंने जोड़ दिया। मैं सीखता हूँ अपने विद्यार्थियों से, आई लर्न फ्रॉम माई स्टूडेंट्स। और उस पुस्तक को पिछले मार्च में महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने प्रतिष्ठित काका कालेलकर पुरस्कार के साथ गोल्ड मेडल और 35,000 का कैश अवार्ड मुझे उस पुस्तक के लिए दिया है जी। उसके अलावा मुझे सितंबर माह में मुंबई प्रांतीय राष्ट्रभाषा प्रचार सभा ने हिंदी से भी सम्मान दिया था, क्योंकि ऑनलाइन हमने बहुत सारा काम किया था हिंदी में। और उसके अलावा पासबाने अदब एक संस्था है यहाँ थाना में,
जिसको हमारे आईपीएस ऑफिसर हैं, अभी हमारे कमिश्नर हैं वो रेलवे के, उन्होंने खोला था। और उन्होंने केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के साथ मिलकर मुझे 15 अक्टूबर को, जिस दिन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब का बर्थडे होता है, उस दिन बेस्ट हिंदी टीचर का अवार्ड दिया था। और उसके बाद मुझे पिछले महीने मतलब जून 22 तारीख को एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता हुई थी, अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस हुई थी, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी। उसको हमने उसको ऑर्गेनाइज किया था। हमारे बगल में 150 साल पुराना एक कॉलेज है, अंजुमन इस्लाम, उसके टेक्निकल कैंपस ने, पनवेल ने, न्यू बॉम्बे ने, इंजीनियरिंग कॉलेज ने उसको ऑर्गेनाइज किया था, जिसमें इंजीनियरिंग कॉलेज के 95 प्रोफेसर थे, फार्मेसी कॉलेज के, और उसमें ह्यूमैनिटीज और हिंदी का तो कोई प्रोफेसर था ही नहीं, मैं अकेला रिप्रेजेंट कर रहा था। तो उसमें मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि आई विल गेट सेकंड और थर्ड प्राइज इन पेपर प्रेजेंटेशन कॉम्पिटिशन अमंग 95 प्रोफेसर्स। और luckily with the grace of Ma Saraswati and with the good wishes of you all, with the blessings of our management, our principal and our staff, and my good wishes of my students, I have got first prize in that paper presentation competition in international conference, and I have got 15,000 rupees Wow. cash award in that. And Wow. that was the topic of that paper was innovation in teaching Hindi to degree students from home and abroad, because I have been teaching Hindi to Sydney University students, Australia, and Spanish students from Spain, and French students from France. So therefore I have been teaching Hindi Wow. not only to the Indian students but also to foreign students. तो हम अपनी तरफ से राजभाषा हिंदी का प्रचार और प्रसार केवल भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपने तरीके से, अपने स्तर पर करने की कोशिश करते हैं जितना हमसे हो सकता है। जी, रियली कमेंडेबल सर, आपने इतना कुछ कर रहे हैं आप देश के लिए और प्लस हमारी राष्ट्रभाषा के लिए, जो आजकल जो है कहीं ना कहीं लुप्त होती जा रही है। कहीं ना कहीं जो है इंग्लिश भाषा की जो है वो इम्पोर्टेंस बढ़ती जा रही है, लेकिन बहुत ही जानकर खुशी हुई कि अभी जो है हमारी राष्ट्रभाषा पूरे वर्ल्ड तक पहुंच रही है। तो रियली हेड्स ऑफ टू यू सर कि आप जो है इतना कुछ कर रहे हैं हमारी राष्ट्रभाषा के लिए। दूसरा मैं जानना चाहूंगी कि अभी जो है हमारा इंडिपेंडेंस डे आ रहा है ऑन 15 अगस्त, तो आपके हिसाब से सर क्या है इंडिपेंडेंस, और आप हमारी ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे सर इस बारे में? जी देखिए, हम लोग महाराष्ट्र में रहते हैं और महाराष्ट्र के छत्रपति शिवाजी महाराज जो हैं उनको मैं पहले सैल्यूट करता हूं, क्योंकि उन्हें छत्रपति शिवाजी महाराज को जो है फादर ऑफ मॉडर्न नेवी कहा जाता है। तो उन्होंने भारत की सुरक्षा के लिए गिरिदुर्ग बनाए और पहाड़ों के ऊपर फोर्ट बनाए और जलदुर्ग बनाए, समंदर के किनारे और समंदर में फोर्ट बनाए, और उन्होंने थल दुर्ग बनवाए। 3 प्रकार के उन्होंने फोर्ट्स बनवाए हमारी सुरक्षा के लिए। और उनका जो फ्लीट था बहुत बड़ा फ्लीट था, और उनके जो एडमिरल थे कान्होजी आंग्रे साहब, तो कान्होजी आंग्रे साहब उनके पहले एडमिरल हुआ करते थे नेवी के। और वहां से हमारी भारतीय नौसेना, मतलब की जो नौसेना की जो परंपरा है वहां से शुरू होती है। तो उसी परंपरा को भारतीय नौसेना आजादी के बाद भी आगे बढ़ा रही है। और उन्होंने कान्होजी आंग्रे साहब ने न केवल ब्रिटिश फ्लीट के साथ बल्कि पुर्तगाली फ्लीट के साथ और डच फ्लीट के साथ, तीनों देशों के साथ उन्होंने समुद्री युद्ध लड़े और अपनी वीरता का परिचय दिया, अपनी गैलेंट्री दिखाई, और उन्हीं की जो लेगेसी है उसको इंडियन नेवी के रूप में आज हम आगे बढ़ा रहे हैं। जी, और भारतीय नौसेना जो है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है, केवल युद्ध काल में ही नहीं बल्कि शांति काल में भी भारत के नागरिकों की सहायता करती आई है, चाहे वह नेचुरल कैलेमिटीज में हो, प्राकृतिक आपदाओं के समय हो, या फिर शांति काल में। और बहुत सारे काम भारतीय नौसेना करती है। जी जी, बहुत ही सही कहा आपने कि मैंने भी काफी देखा हुआ है कि आर्मी पीपल और जो भी हैं बहुत कुछ कर रहे हैं। छोटी छोटी सुरक्षाओं के लिए भी वो हमेशा उपलब्ध रहते हैं। नेचुरल कैलेमिटीज हो, कहीं पे भी हो, वो हमेशा आगे आते हैं। तो बहुत ही खुशी होती है ये सब चीज के, और सही में गर्व है मुझे कि ये सब जो है करते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं जो हम लोग जो है सोचने में भी कभी कभी झिझकते हैं कि हम करें नहीं करें। हम छोटा सा हेल्प करने में भी कभी कभी झिझकते हैं, लेकिन वो हमेशा तत्पर रहते हैं आगे बढ़ने के लिए और दूसरों को हेल्प करने के लिए। तो जैसे आप जो है एजुकेटर हैं,
तो मैं जानना चाहूंगी कि एजुकेशन कितना इम्पोर्टेंट है सोसाइटी के लिए, और एज ए एजुकेटर जो है आप क्या इंफॉर्मेशन देना चाहेंगे जो दूसरे एजुकेटर्स हैं उनको? जी, जैसे कि आपने बताया कि जो एजुकेशन है वो बहुत ही एक पावरफुल टूल है अपने व्यक्तिगत विकास के लिए और अपने व्यावसायिक विकास के लिए और सामाजिक विकास के लिए। तो जी सर। शिक्षा ग्रहण करने के बाद शिक्षा ग्रहण करने के लिए मैं चाहूँगा कि जो हमारे विद्यार्थी हैं, सबसे पहले उनको मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि वो सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट सीखें, समय का प्रबंधन, जी क्योंकि ये चीज़ें हमने भारतीय नौसेना से ही सीखी हैं कि सबसे बड़ी चीज़ है टाइम मैनेजमेंट। देखिए, जो इसरो में हमारे काम करने वाले वैज्ञानिक हैं, आज हम चंद्रयान 3 पर काम कर रहे हैं। चाहे इसरो के वैज्ञानिक हों, चाहे वो हमारे खेल के मैदान में हमारे लिए ओलंपिक में मेडल लाने वाले, गोल्ड मेडल लाने वाले नीरज चोपड़ा जी हों, चाहे वो खिलाड़ी हों हमारे लिए जो ओलंपिक में, कॉमनवेल्थ में या एशियन गेम्स में मेडल ला रहे हैं, चाहे वो खिलाड़ी हों, चाहे वो वैज्ञानिक हों जो दिन रात लैब में काम कर रहे हैं चुपचाप बिना किसी विज्ञापन के, बिना किसी एडवर्टीजमेंट जी के, सर। जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं नेशन बिल्डिंग का, जो वैज्ञानिक हैं, तो वो जिस तरह से काम कर रहे हैं उनके पास भी 24 ही घंटे हैं। तो हमें उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए जो नेशन बिल्डिंग का काम कर रहे हैं वैज्ञानिक हमारे, और भी हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, और अपना डिफेंस ऑफिसर्स हैं, सिविल में बहुत लोग काम कर रहे हैं, जजेस हैं, है ना, एडवोकेट्स हैं, टीचर्स हैं, तो बहुत लोग, सब लोग बिजनेसमैन हैं, हर आदमी जो कर रहा है काम देश के लिए, वो उसे आप देशभक्त कह सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि देशभक्ति के लिए आप केवल यूनिफॉर्म पहनेंगे तभी आप देशभक्त कहलाएंगे। आप सिविल में रह जी के भी अगर आप अपना काम पूरी ईमानदारी से कर रहे हैं और वफादारी के साथ कर रहे हैं और सही उद्देश्य के लिए कर रहे हैं, तो वो भी एक प्रकार की देशभक्ति ही है। जितने भी बिजनेसमैन, देखिए जो बिजनेसमैन हैं, जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उन्होंने अपनी इंडस्ट्रीज में कितने आईआईटी और आईआईएम के लोगों को रोजगार दिया हुआ है, तो वो भी एक तरह से, और कई वर्कर्स को भी उन्होंने रोजगार दिया हुआ है, तो वो भी एक तरह से देशभक्ति का ही काम कर रहे हैं, क्योंकि इतने लोग, इतने पढ़े लिखे हाईली एजुकेटेड लोग भी उनके यहाँ काम कर रहे हैं, उनको भी उन्होंने रोजगार दिया हुआ है, तो उनके परिवार भी उन्हीं के वजह से चल रहे हैं। तो जो इंडस्ट्रियलिस्ट है उनका भी बड़ा योगदान है देश के आर्थिक विकास में, और वैज्ञानिक हैं और जो दूसरे लोग हैं उनका नेशन बिल्डिंग में, राष्ट्र निर्माण में उतना ही योगदान है। तो हमें अपने देश को जब तक हम आर्थिक रूप से सबल नहीं बनाएंगे और जो है उनको हम आर्थिक रूप से जब तक हम विकसित नहीं होंगे, तब तक हम बाकी दूसरे क्षेत्रों में काम नहीं कर पाएंगे। तो अर्थ जो है बहुत महत्वपूर्ण तत्व है। अगर एक बार आर्थिक प्रगति हो जाएगी तो बाकी चीजें फिर अपने आप होती चली जाएंगी। अच्छे मेडिकल कॉलेज, अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज, अच्छे मैनेजमेंट कॉलेज, अच्छे लॉ कॉलेज हमारे यहाँ खुलते चले जाएंगे। तो इसके लिए जरूरी है कि हम अपनी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए काम करें, और अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में जो भी है सरकार की और समाज की हम मदद करें। तो टाइम मैनेजमेंट में कह रहा था कि व्यक्तिगत उसके लिए अपने व्यक्तिगत विकास के लिए, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए सब सुबह जल्दी उठना चाहिए। आज भी मैं 55 साल की उम्र में 3 से 4 बजे के अंदर उठ जाता हूँ। मैं 3 बजे, मैं 3:30 बजे का अलार्म रखता हूँ तो 3 बजे मेरी नींद खुल जाती है। 4 बजे का अलार्म रखता हूँ तो 3:30 बजे नींद खुल जाती है। तो अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज, ये हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कविता। तो अगर हम जल्दी उठते हैं तो हमारे पास 2-3 घंटे एक्स्ट्रा हो जाते हैं काम के लिए। इसलिए जल्दी उठना जो है आपके स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद है, आपके हेल्थ के लिए भी अच्छा है, और आपको टाइम 2-3 घंटे एक्स्ट्रा मिल जाते हैं, और उन 2-3 घंटों में आप अपने व्यक्तिगत विकास के लिए, अपने पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए, पर्सनल ग्रोथ के लिए, और ग्रोथ नहीं, मैं तो कहूंगा कि ग्रोथ जो है वो वन साइडेड होती है। मैं कहूंगा डेवलपमेंट के लिए, पर्सनल डेवलपमेंट जो है वो ऑलराउंड होता है। हमें केवल एक ही क्षेत्र में नहीं जाना है कि हम किताब पढ़ते पढ़ते हम किताबी कीड़े हो गए, ऐसी बात नहीं है। तो हमें किताब पढ़ने के अलावा, बुकिश नॉलेज लेने के अलावा, बड़ी बड़ी डिग्रियां लेने के अलावा हमें अपने लिए, अपने परिवार के लिए, और अपने समाज के लिए, और अपने राष्ट्र के लिए, और मानवता के लिए भी कुछ करना चाहिए। तभी हमारे पढ़े लिखे होने का कुछ फायदा दूसरों को मिलेगा। अगर केवल आपका फायदा आपको ही मिल रहा है तो वो सही मायने में आपकी पढ़ाई नहीं है, क्योंकि पढ़ा लिखा व्यक्ति संवेदनशील होता है और दूसरों की सहायता करता है। तो इसलिए मैं चाहूंगा कि जो हमारी नई पीढ़ी के लोग हैं वो जल्दी सुबह उठें, टाइम मैनेजमेंट सीखें अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए। और अगर प्रोफेशनल ग्रोथ की जहां तक बात है, हमें जो है टीम वर्क सीखना चाहिए। जैसे हमें इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में सिखाया जाता है टीम वर्क।
तो यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। तो हम एकजुट होकर काम करेंगे। एक व्यक्ति अकेला जो है एक बूंद के समान होता है, सागर के बूंद के समान होता है, लेकिन सब लोग मिल जाएंगे तो पूरे समंदर बन जाते हैं। तो इसलिए अकेला, हेलन केलर ने कहा था कि अकेला व्यक्ति थोड़ा काम कर सकता है, अगर मिलके काम करेंगे तो आप बहुत सारा काम कर सकते हैं। इसलिए हमें टीम वर्क, और हमें अपने विद्यार्थियों को, हम हमेशा अपने विद्यार्थियों को टीम वर्क के लिए 2 तरह का असाइनमेंट देते हैं हम उनको। एक तो इंडिविजुअल असाइनमेंट देते हैं, दूसरा टीम असाइनमेंट देते हैं। तो दोनों में परफॉर्म करना चाहिए। इसीलिए यही होता है कि आजकल की जो 90% वाला बच्चा है वो रिजेक्ट हो जाता है, 70% वाला बच्चा सेलेक्ट हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जो 90% वाला बच्चा है वो केवल बुकिश नॉलेज है उसके पास, उसकी थिंकिंग पॉजिटिव नहीं है। इसलिए अगर आपको कुछ काम करना है तो आपका इंटेंशन प्योर होना चाहिए। जब आपका इंटेंशन प्योर होता है, आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर होता है और आपकी थिंकिंग पॉजिटिव होती है, तो अच्छे रिजल्ट अपने आप आने लगते हैं। इसलिए वो जो 90% वाला बच्चा है, शायद उसकी थिंकिंग कहीं निगेटिव होती है, शायद उसके अंदर टीम वर्क की भावना नहीं होती, इसलिए वो रिजेक्ट हो जाता है। जबकि 70% वाला बच्चा, उसकी पॉजिटिव थिंकिंग होती है, उसका इंटेंशन क्लियर प्योर होता है और उसका ऑब्जेक्टिव क्लियर होता है, और वो टीम वर्क में बेहतर परफॉर्म करता है। वो अच्छा टीम लीडर हो सकता है, वो टीममेट हो सकता है अच्छा। इसलिए कंपनी 70% वाले को रख देती है, 90 वाले को रिजेक्ट कर देती है। तो ये चीजें हमारे जो नई पीढ़ी के लोग हैं उनको सीखना चाहिए। हम जब करियर गाइडेंस के लेक्चर करते हैं तो इस तरह की बातें, इस तरह का मोटिवेशन विद्यार्थियों को देते रहते हैं कि आपको अकेले तो परफॉर्म करना ही है, लेकिन टीम में भी परफॉर्म करना है। यू हैव टू बी ए वेरी गुड टीम मेट एंड टीम लीडर। तभी आप बनेंगे, जब आप बनेंगे तभी आप ज्यादा परफॉर्म कर पाएंगे, तब आपकी प्रोफेशनल डेवलपमेंट ज्यादा होगी। जी तो टाइम मैनेजमेंट और टीम वर्क लगता है, और डेडिकेशन है, डिवोशन है, डिसिप्लिन है, पंक्चुअलिटी है ना, और उसके अलावा टीम वर्क है, टाइम मैनेजमेंट है। ये सब चीजें ऐसी हैं जिनसे आप असंभव काम को भी संभव कर सकते हैं। जी, बहुत ही सही कहा आपने। टाइम मैनेजमेंट, टीम वर्क और डेडिकेशन, उसके साथ जो है हम लोग जो है कई ज्यादा आगे बढ़ सकते हैं। तो हमारी ऑडियंस भी हमारे साथ जुड़ी हुई है, वो एक प्रश्न कर रहे हैं हमारे साथ कि जैसे आपने बताया कि टाइम मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो हम उसके अंदर क्या क्या हैबिट्स में चेंजेस ला सकते हैं और उसके अंदर जो है कंसिस्टेंसी कैसे आए। कि कभी कभी कैसा रहता है कि रूटीन जो अगर हम आज जल्दी उठे तो कल हम नहीं उठ पाते हैं, या फिर 2 दिन जल्दी उठते हैं तो नहीं उठ पाते हैं। तो उस तरीके से आप प्लीज कुछ ऑडियंस को टिप्स देना चाहेंगे इस बारे में? जी, ऐसा होता है कि अगर आपके मन में ये है कि मुझे सवेरे इतने बजे की ट्रेन पकड़नी पड़ती है, क्योंकि जो मुंबई वाले हैं उनकी जो लाइफलाइन है रेलवे, लोकल ट्रेन है, मेट्रो है, तो हमें सवेरे जल्दी उठ के लोकल ट्रेन पकड़नी पड़ती है। इसलिए एक तो मजबूरी हमारी हो जाती है मुंबई वालों की जल्दी उठना है, लोकल ट्रेन नहीं तो मिस हो जाएगी तो भीड़ में खड़े खड़े यात्रा करनी पड़ेगी। तो एक तो ये डर रहता है कि हमें लोकल ट्रेन का ज्यादा भीड़ का मुकाबला न करने पड़े, सामना न करना पड़े, भीड़ से पहले ही हम पहुंच जाएं अपने ऑफिस में, अपने कॉलेज में, अपने ऑफिस में, ताकि काम कर सकें। तो पहली बात तो ये है कि आपके अंदर एक पॉजिटिव फियर होना चाहिए, एक सकारात्मक डर होना चाहिए कि हमें ये काम करना है इसलिए जल्दी उठना है। तो ये बात अगर दिमाग में रख के आप सोएंगे तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में भी सपने भी आपको जल्दी उठने के ही आएंगे, और आप बगैर अलार्म के भी सवेरे जल्दी उठ पाएंगे। और ये होता है कि जब आप शुरू में उठते हैं तो आपको तकलीफ जरूर होती है, सवेरे जल्दी उठने में परेशानी होती है, लेकिन धीरे धीरे 10-15 दिन में आप हैबिचुअल हो जाते हैं। फिर आपको, मेरा ऐसा है कि मेरा व्यक्तिगत रूप से मैं 3 से 4 बजे के बीच उठता हूँ, और छुट्टी के दिन में 5 बजे के बाद कभी नहीं सोता। छुट्टी के दिन भी मैं 5 बजे उठ जाता हूँ, क्योंकि अब मेरी पिछले 20 वर्षों से मेरी आदत पड़ गई है। जब विले पार्ले कॉलेज में था तो मुझे ट्रेन चेंज करके जाना पड़ता था, तो 7 बजे का लेक्चर होता था कॉलेज में। यहाँ से मैं दादर की ट्रेन पकड़ता था, पहले 1 घंटा वहां, फिर वहां से 20 मिनट और सवा घंटा करीब मुझे दादर से फिर विले पार्ले की ट्रेन पकड़नी पड़ती थी। तो इसलिए मुझे सवा घंटा यात्रा करनी पड़ती थी, और घर से निकलते और कॉलेज पहुंचते पहुंचते 2 घंटे एक तरफ के लग जाते थे, तो 4 घंटा हमारा कम्यूटिंग में जाता था। तो इसलिए हमको टाइम मैनेजमेंट करना हमारा मजबूरी भी हो जाती थी। लेकिन केवल बड़े शहरों के लिए नहीं, केवल मेट्रोपॉलिटन और कॉस्मोपॉलिटन सिटीज के लिए नहीं, छोटे शहरों के लिए भी जरूरी है कि आप अगर जल्दी उठते हैं तो आपको, एक तो आपकी सेहत अच्छी रहती है, और दूसरा जल्दी उठने से आपके पास जो एक्स्ट्रा आवर्स मिलते हैं, आपको अतिरिक्त समय मिलता है, उसमें आप अपने व्यक्तिगत और व्यावसायिक काम कर सकते हैं। तो इसलिए टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है जी। और आपको ये समझना चाहिए कि जैसे मैं आपको बताया कि इसरो में काम करने वाले चाहे साइंटिस्ट हों, चाहे वो खेल के मैदान में काम करने वाले नीरज चोपड़ा हों, गोल्ड मेडल लाने वाले हमारे लिए, सबके पास
24 ही घंटे हैं, वो लोग भी तो 24 घंटे में ही प्रैक्टिस भी करते हैं, एक्सपेरिमेंट भी करते हैं और सारा ऑब्जर्वेशन भी करते हैं, सारा काम वो उन्हीं 24 घंटे में। तो आपको एक टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। जैसे हम कॉलेज में पढ़ाते हैं या स्कूल में पढ़ाते हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, तो हम एक टाइम टेबल फॉलो करते हैं। तो इस घंटे में, इस लेक्चर में हमको ये सब्जेक्ट पढ़ाना है, साइंस पढ़ाना है या मैथ्स पढ़ाना है या कॉमर्स पढ़ाना है या फिर ह्यूमैनिटीज पढ़ानी है, लैंग्वेज पढ़ानी है। तो हमारा साल भर का पूरे सेमेस्टर का टाइम टेबल फिक्स रहता है। तो हम जब टाइम टेबल फॉलो करते हैं तो हमारा पूरा सिलेबस पूरा कर पाते हैं। अगर टाइम टेबल फॉलो नहीं करेंगे तो सिलेबस पूरा ही नहीं होगा, तो पुस्तक अधूरी रह जाएगी। इसलिए जिस प्रकार हम कॉलेज में, स्कूल में टाइम टेबल फॉलो करते हैं, वैसे ही हमारा घर में भी एक टाइम टेबल होना चाहिए कि इतने बजे सोना है, इतने बजे उठना है, इतने बजे ही टेलीविजन देखना है। ऐसा नहीं कि टेलीविजन के सामने आप घंटों बैठे हैं। अगर 2 घंटे आप टेलीविजन के सामने ही बिता देंगे तो आप केवल हेडलाइंस जो हैं वही देखिए। 10-15 मिनट टेलीविजन देखने के लिए दीजिए, हेडलाइंस आपको पता चल जाएगा कि देश और दुनिया में क्या हो रहा है। आपको 2 घंटा टेलीविजन के सामने बैठने की जरूरत नहीं है। अगर आप 2 घंटे बैठेंगे तो आपके वो 2 घंटे वेस्ट हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। इससे अच्छा है कि आप 10-15 मिनट में समाचार देखिए, अपना नॉलेज अपडेट कीजिए और जनरल नॉलेज बढ़ाइए, और बाकी की जो 1-1.5 घंटा बचता है उसमें आप दूसरे काम कीजिए, अपना होमवर्क कीजिए, अपना जो क्लास वर्क है वो कीजिए, मतलब जो भी आपका ऑफिस का काम है वो कीजिए। तो इस तरह से आप टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं, टाइम टेबल बना के और जल्दी उठ के। यही एक तरीका है। और आपको मैं जी, बताता बहुत हूँ, जल्दी उठने से पिछले 20 वर्षों में आज तक जब मैं नेवी में 15 साल नौकरी किया तो 3 बार एडमिट हुआ था। एक बार मेरा नाक का सेप्टोप्लास्टी और गले का टॉन्सिलेक्टोमी, टॉन्सिल्स का ऑपरेशन हुआ था। एक बार तब मैं एडमिट हुआ था एनएस अश्विनी में। दूसरी बार मुझे न्यूमोनिया हो गया था, तो शिप से मुझे उतरना पड़ा और तब मुझे एडमिट होना पड़ा और 45 इंजेक्शन सोडियम पेनिसिलिन के मुझे लगे। तो तब मैं 30-40 दिन एडमिट रहा था। और एक बार और किसी कारण से रहा था, बुखार वगैरह की वजह से। 3 बार मैं 15 साल में एडमिट रहा, यानी कि 5 साल में 1 बार बीमार पड़ा, अगर मैं औसत निकालूं अपनी बीमारी का तो। लेकिन पिछले 20 वर्षों में मैं जब से नेवी से रिटायर हुआ हूं तो आज तक मैं 1 बार भी बीमार नहीं पड़ा हूं। और केवल 1 बार मुझे हल्का बुखार आया था और 1 बार कुछ और पेट की समस्या हुई थी। अदरवाइज मैं कभी एडमिट नहीं हुआ पिछले 20 वर्षों में। बस इसका कारण एक ही है कि न मैं जिम जाता वाह, हूँ, न मैं क्रॉस कंट्री करता हूँ, और न मैं दौड़ता हूँ, न मैं जिम जाता हूँ। केवल सवेरे जल्दी उठता हूँ और थोड़ा बहुत वॉक करता हूँ। और सबसे बड़ी चीज है पॉजिटिव थिंकिंग। जब आप पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं तो आपके शरीर में वो एक ऐसा केमिकल आपके दिमाग में, आपके न्यूरॉन्स में एक ऐसा प्रवाहित होता है जिससे आप बीमार नहीं पड़ते हैं। ठीक है। और उसकी वजह से ओके, आपको फिर डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। यानी कि आप पॉजिटिव थिंकिंग जब रखते हैं तो वो जो साइकोलॉजी है उससे आपका शरीर भी फिट रहता है। तो पॉजिटिव थिंकिंग से आप बीमार नहीं पड़ते कभी। और सवेरे जल्दी उठना, मैं 2 ही काम करता हूँ, एक सकारात्मक सोच रखता हूँ और सवेरे जल्दी उठता हूँ, और कोई एक्सरसाइज नहीं, केवल वॉक करता हूँ बस। इसी से मैं पिछले 20 वर्षों से कभी बीमार नहीं पड़ा हूँ। तो यही मैं संदेश दे सकता हूँ। वाह, और आप सादा खाना खाइए, ज्यादा तला भुना खाना और बाहर होटल का, रेस्टोरेंट का ज्यादा खाना, विशेष रूप से आप तला भुना खाना कम खाइए। और मैं तो विशेष रूप से मैं शाकाहारी हूँ, और इसलिए आप हरी सब्जियां खाइए, फ्रूट्स खाइए, वेजिटेबल्स खाइए, ड्राई फ्रूट्स खाइए। और जो है इस पर एक जर्मनी में मैक्स प्लांक यूनिवर्सिटी में एक रिसर्च हुई थी। तो वहां मैक्स प्लांक यूनिवर्सिटी में एक रिसर्च की गई रैट्स के ऊपर। रैट्स के 3 ग्रुप बनाए गए, 50 रैट्स का ए ग्रुप, 50 रैट्स का बी ग्रुप, 50 रैट्स का सी ग्रुप बनाया गया। तो वहां के मैक्स प्लांक के ओके, साइंटिस्ट ने ए ग्रुप को जो है शाकाहारी भोजन दिया 3 महीने तक। बी ग्रुप के रैट्स को 3 महीने तक जो है केवल फास्ट फूड दिया, बर्गर पिज्जा वगैरह दिया गया उनको। और जो तीसरा ग्रुप था ओह, उनको 3 महीने तक केवल नॉनवेज दिया गया, चिकन, मटन, फिश, अंडा दिया गया। तो बाद में 3 महीने के बाद जब उनका मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ तीनों ग्रुप के रैट्स का, तो मैक्स प्लांक यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट ने ये पाया कि जो ए ग्रुप के जो रैट्स थे, 50 रैट्स जिनको केवल शाकाहारी भोजन दिया गया था 3 महीने तक, वो सबसे ज्यादा एक्टिव फिजिकली और सबसे ज्यादा फिट थे। और जो बी ग्रुप के थे, वाह, जिनको केवल बर्गर पिज्जा खिलाया गया था, वो बड़े लेथार्जिक थे, बड़े आलसी हो गए थे। और जो सी ग्रुप के थे वो सबसे ज्यादा बीमार थे और सबसे ज्यादा ओवरवेट, और वो ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन वगैरह वो सब इसी की वजह से होता है कि हम खाते जाते हैं और उसको डाइजेस्ट करने के लिए फिजिकल एक्सरसाइज कम करते हैं। इसलिए खाने और कार्य करने के बीच, फिजिकल एक्टिविटी के बीच में एक 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 रेशियो होना चाहिए फिक्स, कि आप जितना खाते हैं उसके हिसाब से आप एक्सरसाइज भी करनी चाहिए आपको, तो आप फिट रहते हैं। जी। जी, जी।
बहुत ही सारे इतनी अच्छी टिप्स दी आपने टाइम मैनेजमेंट के बारे में, और शाकाहारी भोजन खाने के लिए, और किस तरीके से इंसान फिट रह सकता है, और हमारी यंग जनरेशन को भी आपने इतना प्रोत्साहित किया है अभी अपनी इतनी अच्छी एडवाइस के लिए। तो मेरी एक फ्रेंड है ज्योति केसवानी, वो पूछना चाहती है कि हम ये जो टाइम मैनेजमेंट रिलेटेड चीजें हैं, तो अगर हम जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं तो उसके लिए हम कैसे ये मैनेज कर सकते हैं? तो उसके लिए कुछ संक्षेप में आप कुछ बताना चाहेंगे सर? जॉइंट फैमिली के तो ऐसा है कि बहुत और भी अच्छा है। जो हमारी अच्छा। एक बुआ जी हुआ करती थी जिनकी अभी हाल ही में डेथ हुई है, तो उनका जब विवाह हुआ था, उनके ससुर जी के 4-5 भाई साथ में रहते थे। एक भाई बैचलर थे, बाकी सब शादीशुदा थे, सबके बच्चे थे, सबके परिवार था। तो मैंने उनको परिवार में ये देखा कि कैसे जो चचेरा भाई है वो अपनी चाची की गोद में सोता है और चाची उसको दूध पिलाती है, और जो दूसरा भाई है उसकी कोई ताई उसका ख्याल रख रही है। और तो जॉइंट फैमिली में क्या होता है कि हमारे यहाँ जो भारत है, हमारा जो देश है, इसकी हमारे यहाँ प्राचीन संस्कृति जो है संयुक्त परिवार की ही रही है। और इसीलिए ये जो संस्कृति हमारे भारत में संयुक्त परिवार की संस्कृति, इसकी वजह से पूरे विदेश के लोग, यूरोप के लोग, अमेरिका के लोग भारत की इज्जत करते हैं कि हमारे यहाँ जॉइंट फैमिली सिस्टम अभी भी बरकरार है। तो इसमें क्या होता है जी। कि संयुक्त परिवार में जब आप रहते हैं तो आपको थोड़ा सा रिस्पेक्ट योर एल्डर्स एंड लव योर यंगर्स, ये भी हमको भारतीय नौसेना ने ही सिखाया। जब हम रिस्पेक्ट जी। और एल्डर्स एंड लव और यंगर्स की बात करते हैं, तो जब हम बड़ों को सम्मान देते हैं, होता है कि जो बड़ा पेड़ होता है ना, वही आपको छाया भी देता है और फल भी देता है। और जो गमले में लगा हुआ पौधा होता है छोटा, वो आपको ना छाया देगा ना वृक्ष देगा। इसलिए जो छोटे हैं परिवार में, जो उम्र में कम है, उन्हें चाहिए कि वो अपने से बड़ों की इज्जत करें, रिस्पेक्ट करें। क्योंकि जब बड़ों की रिस्पेक्ट की जाती है, इज्जत की जाती है, इसलिए करें इज्जत कि वो पहले पैदा हुए हैं, इसलिए मत करें। इसलिए करते हैं क्योंकि उनके पास जिंदगी का अनुभव आपसे ज्यादा है, उन्होंने जिंदगी को आपसे ज्यादा देखा है। जो रियल लाइफ चैलेंजेस हैं उन्होंने जिंदगी में ज्यादा देखे हैं और उनको ओवरकम किया है। उनके पास अनुभव ज्यादा है, वो अनुभव में अपने आप में एक यूनिवर्सिटी है, आप तो एक स्कूल भी नहीं है। तो इसलिए बड़ों की इज्जत करेंगे तो अपने आप उनके दिल से दुआएं निकलेंगी और आपको स्नेह मिलेगा और उनको आशीर्वाद मिलेगा, उनके मोटिवेशन मिलेगा, उनसे प्रेरणा मिलेगी, उनका मार्गदर्शन मिलेगा। और बड़ों के आशीर्वाद से ही जो है आप आगे फलेंगे फूलेंगे, आपके व्यक्तित्व का विकास होगा। तो जो बच्चे हैं उनको चाहिए कि बड़ों का सम्मान करें, और जो बड़े हैं उनको भी चाहिए कि वो केवल बच्चों को हरासमेंट न करें, मेंटली टॉर्चर न करें और फिजिकल पनिशमेंट न दें, बल्कि उन्हें ये सोचे कि किसी दिन हम भी उन्हीं की तरह छोटे बच्चे थे और उनको अपने जैसा समझे। हमारे पिताजी कहा करते थे कि जो बड़ा भाई होता है वो अपने पिता के समान होता है, उसे अपने पिता के समान इज्जत देनी चाहिए। और जो छोटा भाई है वो अपने बराबर होता है, उसको अपने बराबर का समझो। छोटे भाई को उसको छोटा मत समझो, अपने बराबर का उसको समझो। मतलब प्रोटोकॉल में, जैसे हमारे यहाँ नेवी में, आर्मी में, एयरफोर्स में प्रोटोकॉल फॉलो होता है, तो प्रोटोकॉल के हिसाब से आप जो छोटे भाई है उसको अपने बराबर का समझिए और जो बड़ा भाई है उसको अपने पिताजी के बराबर समझिए, तो फिर भाइयों में झगड़े ही खत्म हो जाएंगे। जी बहुत ही सही बात कही आपने सर कि बड़ों के आशीर्वाद से और फैमिली सपोर्ट से कोई भी ग्रो कर सकता है सर। और लास्ट बट नॉट लीस्ट जो है, आप जो कविताएं भी लिखते हैं, आप बहुत सारी कविताएं बोलते भी हैं, तो हमारी ऑडियंस के लिए कुछ पंक्तियां आप कहना चाहेंगे सर? जी 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 मैंने दरअसल जब मैं आईएनएस वलसूरा में था उस समय कल्पना चावला जो थी हमारे देश की अंतरिक्ष यात्री, जी सर। पहली बार जाके वापस आ गई थी स्पेस में। दूसरी बार जब वो गई तो 16 मिनट पहले मैं उन दिनों इंस्ट्रक्टर की ड्यूटी कर रहा था जामनगर गुजरात में। तो मैं अपनी इंस्ट्रक्टर की ड्यूटी करके 2-3 बजे के आसपास घर लंच के लिए आया हुआ था। तो मैंने टेलीविजन ऑन किया तो देखा जो कोलंबिया शटल था अमेरिका का, नासा का, उससे 7 अंतरिक्ष यात्री, 7 एस्ट्रोनॉट्स को लैंड करना था। और जैसे ही वो कोलंबिया शटल जिसमें 7 एस्ट्रोनॉट थे इंक्लूडिंग कल्पना चावला, तो जैसे ही वो अर्थ के ऑर्बिट में आया तो वो ज्यादा एक्सेसिव हीट की वजह से, उसकी फ्रिक्शन की वजह से, हीट की वजह से उसकी थर्मल टाइल निकल गई बाहर और उसके अंदर हीट पेनिट्रेट हो गई और एक जबरदस्त ब्लास्ट उसके अंदर हुआ। और वो जो शटल था कोलंबिया, उसके कई टुकड़े हो गए। तो उसकी जो लैंड करने के लिए खेतों में व्यवस्था की गई थी नासा के द्वारा, और एम्बुलेंस खड़ी थी वहां
और फायर ब्रिगेड खड़ी थी, सारे सब लोग तैयार थे उनको रिसीव करने के लिए, एस्ट्रोनॉट्स को। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कि 16 मिनट पहले जैसे ही कोलंबिया, नासा का कोलंबिया शटल पृथ्वी की कक्षा में प्रवेश किया, उसने अर्थ के ऑर्बिट में वो एंटर किया, तो वो थर्मल टाइल निकलने से ब्लास्ट हुआ और उसके टुकड़े टुकड़े हो गए और वो 7 किलोमीटर की एरिया में फैल गया। और उसके अंदर जो अंतरिक्ष यात्री थे 7, उनकी एट द स्पॉट, ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। और उनके जो शरीर के टुकड़े थे, आप समझिए जैसे कुकर में चिकन या मटन पकने के बाद उसके टुकड़े हो जाते हैं, वैसे ही उनके शरीर के टुकड़े हो गए थे। और उनके उसके बाद वो दृश्य में देख रहा था टेलीविजन में, उसके बाद मेरे मन में एक कविता आई, क्योंकि कविता के लिए क्या होता है कि हमारे एक बहुत बड़े कवि थे हिंदी के, गोपाल दास सक्सेना नीरज, जो मेरठ में मंगलायतन यूनिवर्सिटी के चांसलर भी रहे। 90 से ऊपर उनकी कुछ सालों पहले मृत्यु हो गई। और वो मंच पर बहुत अच्छी कविताएं पढ़ते थे, विदेशों में जाते थे और उन्होंने हिंदी फिल्मों के लिए भी गीत लिखे हैं, गोपाल दास सक्सेना नीरज जी ने। तो वो कहा करते थे कि आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य, मानव होना भाग्य है, कवि होना सौभाग्य। तो ये उनकी परिभाषा थी कविता की। उसी तरह से हमारे सुमित्रानंदन पंत जी, जो छायावादी कवि थे और जो पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त कवि हैं हिंदी के, तो उन्होंने कहा था कि वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, उमड़ कर आंखों से चुपचाप वही होगी कविता अनजान। तो कविता जो होती है उसके लिए विलियम वर्ड्सवर्थ ने ये कहा अंग्रेजी में कि पोएट्री इज ए स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स। कविता कभी जानबूझ के लेख की तरह, आर्टिकल की तरह लिखी नहीं जाती, बल्कि कविता जो है स्वतः स्फूर्त, अपने आप परिस्थितियों को देखकर अपने मन से, आपके मन से फूट पड़ती है। तो कविता के लिए जो है, आपके मन में अगर करुणा है, आपके मन में अगर दया का भाव है, जैसे कि हमारे वाल्मीकि जी थे संस्कृत के, उन्होंने बहुत रामायण जो संस्कृत में लिखी, तो वो बैठे हुए थे एक जगह, उन्होंने देखा कि क्रंच पक्षी का एक जोड़ा है और वो आपस में प्रेम कर रहा है। तो एक शिकारी आता है, तीर मार देता है, उसमें जो जोड़े में से, जो प्रेमी जोड़ा था उसमें से एक को तीर मार के गिरा देता है, और जो दूसरा जो है, एक तो जीवित ही मर जाता है, जिंदा मर जाता है, दूसरा जो है उसकी हालत को देखकर उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। तो वाल्मीकि के आंखों से अचानक कविता फूट पड़ती है, जिसे आदि श्लोक कहते हैं कि मां निषाद क्रौंच, मां निषाद प्रतिष्ठाम तमगमः शाश्वती समा यद क्रौंच मिथुनादेकम वधि काम मोहितम। अरे शिकारी, तुमने इन क्रौंच पक्षी के जोड़े में से एक को क्यों मार दिया? इन क्रौंच पक्षी के जोड़े ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? तो इस प्रकार करुणा थी उनके मन में, दया थी, प्रेम की भावना थी। तो प्रेम और करुणा और दया से ही कविताएं उत्पन्न होती हैं। तो वो कविता, वो जो परिस्थितियां मैं देख रहा था टेलीविजन पर, उसके बाद मैंने ये कविता लिखी। जामनगर गुजरात में INS वलसुरा में ही मैंने कविता लिख दी थी। और ये कविता मैंने CBSE के, ICSE के सिलेबस में 7वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए लिखी है। जहां भी वुमेन्स एम्पावरमेंट की जब बात होती है, गर्ल्स कॉलेज में मैं जब भी जाता हूँ, गर्ल्स कॉलेज मैंने 8 साल पहले ही पढ़ाया है, तो मैं ये कविता जरूर सुनाता हूँ। मेरी ये कविता है कल्पना की कल्पना। तो ये कविता है, कल्पना की कल्पना थी चांद पर जाए कभी वह जान को रखकर हथेली, कल्पना की कल्पना थी चांद से खेले कभी वह चांदनी की बन सहेली। बालपन में जब भी उसने खेलने का मन बनाया, प्रश्न बार बार मन में एक ही हर बार आया, क्या सितारों पर कहीं उपलब्ध हवा और पानी, जानने की लालसा से कल्पना ने मन ही मन में एस्ट्रोनॉट बनने की ठानी। कल्पना की कल्पना थी चांद पर जाए कभी वह जान को रखकर हथेली, कल्पना की कल्पना थी चांद से खेले कभी वह चांदनी की बन सहेली। करनाल की लाडली बेटी, करनाल की लाडली बेटी स्कूल में जब अव्वल आई, गुरुजनों ने, सब जनों ने इस विद्योत्तमा को दी बधाई। अभियंता बन चंडीगढ़ से जब अमेरिका का वक्त आया, माता पिता ने तब थोड़ा सा अपना अपना दुखड़ा रोया, पर कल्पना की कल्पना थी चांद पर जाए कभी वह जान को रखकर हथेली, कल्पना की कल्पना थी चांद से खेले कभी वह चांदनी की बन सहेली। नासा से, टेक्सास से वो पीजी लेकर जब नासा से जुड़ी बाद में, टेक्सास से वो पीजी लेकर जब नासा से जुड़ी बाद में, शुभ यात्रा थी पहली उसकी, पर चूक गई अगले प्रयास में। नमन मेरा कल्पना को और समर्पित हम सभी की भावनाएं, कल्पना की कल्पना साकार करने जन्म लेंगी फिर यहाँ पर कल्पनाएं, जन्म लेंगी फिर यहाँ पर कल्पनाएं। जी, वाह, रियली अमेजिंग सर।
बहुत ही धन्यवाद। सुंदर कविता आपने कही, बहुत ही सुंदर। एंड आई एम श्योर कि जिन्होंने भी अभी तक जो है काफी सारी ऑडियंस हमारे साथ जुड़ी हुई है, आपकी बातों से इतने प्रेरित हुए हैं कि वो अभी तक जो है वो हमारा सेशन सुन रहे हैं। और बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके सर। और जो भी बहुत बहुत देशभक्ति की धन्यवाद मैडम। भावना है, बहुत सारी चीजें हमें पता चली सर, कि टाइम मैनेजमेंट जी, कैसे करना चाहिए। बहुत ही सारी शिक्षा आपने दिया सर, और थैंक यू सो मच सर। और बहुत बहुत मैं सर धन्यवाद क्या जी। बोलूं, मेरे पास शब्द नहीं है सर। लॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड एंड आपका रियली अ एक ग्रेट प्रश्न, सैल्यूट सर। आपका वो था, एक प्रश्न जो आपका था वो पेपर प्रेजेंटेशन पर था। तो मैंने 30 से अधिक पेपर प्रेजेंट किए हैं नेशनल सेमिनार में, और 15 से अधिक इंटरनेशनल सेमिनार में प्रेजेंट किए हैं। तो आपका एक प्रश्न ये था कि आपका सबसे अच्छा पेपर उसमें से कौन लगता है, कौन सा पेपर आपको खुद अच्छा लगता है। तो एक पेपर मैंने डहाणुकर एक कॉलेज है विले पार्ले में, वहाँ पर डाणुकर कॉलेज में मैंने कॉमर्स डिपार्टमेंट ने, कॉमर्स के इंग्लिश डिपार्टमेंट ने वो ऑर्गेनाइज किया था। तो उसमें मैंने टाइम मैनेजमेंट पर एक पेपर प्रेजेंट किया था, वो मेरे दिल के काफी ओके। करीब है पेपर। इसके अलावा हेलन केलर पर मैंने एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में पेपर प्रेजेंट किया था, वो मेरे दिल के करीब है। इसके अलावा विमेंस हायर विमेंस एम्पावरमेंट इन इंडिया थ्रू हायर एजुकेशन, इस पर मैंने एक पेपर प्रेजेंट किया था नॉर्थ महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी में। वो इंटरनेशनल जर्नल में पब्लिश हुआ था, वुमेन्स एम्पावरमेंट थ्रू हायर एजुकेशन इन इंडिया। वो मेरे दिल के काफी करीब है। और इसके अलावा जिस पर मुझे अभी हाल में पुरस्कार मिला है, इनोवेशन इन टीचिंग हिंदी टू डिग्री स्टूडेंट्स फ्रॉम होम एंड अब्रॉड। तो ये 4 पेपर मेरे काफी दिल के करीब है। और 30-35 टेक्स्ट बुक हमने लिखी हैं, और 4-5 किताबें। एक किताब हमारी अभी और आ रही है, जिसमें हमने आजादी के अमृत महोत्सव पर देश के 75 एमिनेंट साइंटिस्ट की, वैज्ञानिकों की जीवनी का एक कलेक्शन तैयार किया है। जो पहला ड्राफ्ट मैंने वाह। प्रूफ रीडिंग करके भेजा है, दूसरा ड्राफ्ट अभी आने वाला है, मतलब दूसरी बार आने वाला है दूसरे प्रूफ रीडिंग के लिए। तो एक पुस्तक और हमारी वो आ रही है, तो उसमें हमने उसका हम दूसरा वॉल्यूम भी निकालने वाले हैं, जिसमें हम वैज्ञानिकों के प्रति जो हमारा जो कृतज्ञता का जो भाव है, जो फीलिंग ऑफ ग्रेटिट्यूड है हमारे मन में, वो हम पे करना चाहते हैं। इसलिए वैज्ञानिकों को, क्योंकि नेशन बिल्डिंग में वैज्ञानिकों का बहुत बड़ी भूमिका है, इसलिए हम उनकी जीवनियों का कलेक्शन कर रहे हैं। 75 का तैयार हो गया, 75 का और करने वाले हैं। तो ये हमारा आने वाले समय में। वाह। और आपने जागृति वाला आपका एक प्रश्न छूट गया कि विजुअली चैलेंज बच्चों का एक स्कूल है जागृति, पूना के पास देवाची आळंदी में। तो मैं विले पार्ले में एलजे महाविद्यालय में जब काम करता था, तो विले पार्ले में जो पार्ले जी की कंपनी है, उसी के नाम से विले पार्ले शहर का नाम है। पार्ले जी, अच्छा। क्या कहना चाहिए कि शहर के नाम से फैक्ट्री का नाम पड़ गया विले पार्ले। से मैं वहां जाता था देवाची आलंदी में। विजुअली चैलेंज गर्ल्स का स्कूल था वो, 10वीं तक, 8वीं तक उसमें ब्लाइंड बच्चियां पढ़ती थी, विजुअली चैलेंज बच्चियां, दिव्यांग, दृष्टिबाधित दिव्यांग। मोदी जी ने अभी, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने नया नाम दिया है दिव्यांग, जो डिफरेंटली एबल हैं। यस सर। तो जी। उनके लिए मैं 100 पैकेट बिस्किट के पार्ले जी कंपनी से लेकर जाया करता था बच्चियों के लिए। और उनके लिए मैं भाषण प्रतियोगिता आयोजित करता था, अपनी जेब से पैसे लगाता था, उनको प्रथम पुरस्कार के रूप में स्कूल बैग देता था, और द्वितीय पुरस्कार के रूप में वाटर बॉटल और इंस्ट्रूमेंट बॉक्स वगैरह दिया करता था। और उनको मैंने ब्रेल की पुस्तकें अपनी लाइब्रेरी से दिलवाई थी। और अभी मैंने पिछले वर्ष ही अपनी जेब से 75 आजादी के अमृत महोत्सव पर 75 पुस्तकें जो हैं, एक अनाथ बच्चों का स्कूल है, एक ऑर्फनेज है पूना के पास, उन बच्चियों के लिए 75 पुस्तकें हिंदी की भेजी हैं, ताकि बच्चियां जो हैं मुफ्त में पढ़ सकें। और हमने इंडियन नेवी को भी अभी 35 बुक्स जो है गिफ्ट की हैं। तो इस तरह से हम पढ़ाई लिखाई के साथ, अध्ययन और अध्यापन के साथ जितना हो सकता है हम जो है दिव्यांग बच्चों के लिए भी मदद करने की कोशिश करते हैं। और मेरा फ्यूचर प्लान ये है कि अभी मेरी उम्र 55 साल है, और मैं आने वाले समय में दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए एक स्कूल खोलना चाहता हूँ, या उनके लिए कुछ उनको मदद करना चाहता हूँ। चाहे वो अध्ययन अध्यापन, मुफ्त में अध्ययन अध्यापन की बात हो, या कुछ और लॉजिस्टिक सपोर्ट के माध्यम से मैं उनको मदद करना चाहता हूँ। क्योंकि हमारे देश में पूरी दुनिया के 25% विजुअली चैलेंज ब्लाइंड लोग हमारे देश में रहते हैं। तो इनके लिए भारत सरकार ने जो पहला ब्लाइंड बच्चों का स्कूल था, देहरादून में खुला था। और यहाँ एक केरला में पहला कॉलेज खुला था, और यूनिवर्सिटी यहाँ है, जिसके राम भद्राचार्य जी, जगत गुरु राम भद्राचार्य जी जो है चांसलर थे।
उसके चित्रकूट में है यूनिवर्सिटी विजुअली चैलेंज लोगों की। तो इस तरह से एक यूनिवर्सिटी है हमारे यहाँ, एक कॉलेज है केरला में, और स्कूल्स बहुत सारे हैं हमारे महाराष्ट्र में, काफी 25-30 विजुअली चैलेंज बच्चों के स्कूल हैं। तो उसको आगे बढ़कर मैं चाहता हूं कि उन जिन लोगों ने अपनी आंखों से इस दुनिया को देखा नहीं है, इतनी खूबसूरत दुनिया को, लेकिन वो बड़े संवेदनशील होते हैं, बड़े ईमानदार होते हैं, बड़े वफादार होते हैं विजुअली चैलेंज लोग, तो उनके लिए मैं कुछ करना चाहता हूँ। तो ईश्वर की कृपा रही और आप लोगों का आशीर्वाद रहा तो हमारे हाथ से अच्छा काम होगा आने वाले समय में। तो ये हमारा प्योर इंटेंशन है और ये हमारा ऑब्जेक्टिव है और ये हमारी पॉजिटिव थिंकिंग है आने वाले समय के लिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आपने अपना समय जो है हमको दिया, और मैं आपको और आपकी पूरी संस्था को और विशेष रूप से आपको मतलब मिस सोनिया लांबा मैडम को भी और मिस प्रेरणा वासवानी मैडम को भी और आपकी पूरी टीम को, आपकी जो ऑर्गेनाइजिंग टीम है उन सबको 15 अगस्त की बधाई देता हूं। और इस अच्छे कार्यक्रम के लिए ये सार्थक कार्यक्रम है, ये मीनिंगफुल आपने जो इवेंट ऑर्गेनाइज किया। सक्सेसफुल तो बहुत सारे इवेंट होते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि सक्सेसफुल होने के साथ साथ इवेंट को मीनिंगफुल भी होना चाहिए। तो आपका जो ये इवेंट है ये मीनिंगफुल रहा और सार्थक रहा, इसलिए इस सार्थकता के लिए मैं आपको और आपकी पूरी टीम को बधाई देता हूं। और आने वाले समय में आप इसी तरह के अच्छे कार्यक्रम आयोजित करते रहें, उसके लिए शुभकामनाएं देता हूं अपने विद्यार्थियों की ओर से, अपने परिवार की ओर से, अपने विभाग की ओर से, अपने महाविद्यालय सेंट जेवियर्स कॉलेज की ओर से, भारतीय नौसेना की ओर से बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं और 15 अगस्त की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। जय हिंद मैडम। जय हिंद सर, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने इतना कीमती वक्त निकाला हम सभी के लिए और इतनी सारी अच्छी बातें कही। और जो आपने न्यू स्कूल के लिए आपने कहा कि डेफिनेटली अगर आपको हमारी तरफ से भी कुछ सपोर्ट चाहिए तो मैं भी दूसरे एनजीओ के साथ एसोसिएटेड हूँ, तो डेफिनेटली हम आपके सपने को साकार करने में मदद करेंगे सर इस चीज के लिए। और हमारा सौभाग्य रहा तो हम जरूर मिलने आएंगे आपसे जल्दी ही, और जो भी जागृति स्कूल में भी अगर मिलना है तो हम जरूर मिल सकते हैं सर। और बहुत बहुत शुक्रिया सर। हमारे कॉलेज में ही बहुत बड़ा सेंटर है XRCVC नाम से, जिसमें विजुअली चैलेंज बच्चे 15-16 हैं और बाकी अलग अलग प्रकार की दिव्यांगता से पीड़ित बच्चे हैं। कोई व्हील चेयर में आता है, अभी कुछ दिन पहले एक व्हील चेयर में आया था बच्चा, बहुत अच्छा गाना उसने हमारे गाया कॉलेज डे के दिन। तो बहुत अच्छे टैलेंटेड बच्चे हमारे यहाँ हैं और बहुत अच्छा गाते हैं और बहुत अच्छे एकेडमिक्स में अच्छे हैं। तो इस तरह से उनके लिए भी हम बहुत कुछ करना चाहते हैं अपने कॉलेज के विद्यार्थियों के लिए, और जो दूसरे विद्यार्थी हैं दूसरे स्कूल्स में हैं, कॉलेजेस में हैं, उनके लिए भी अच्छा करना चाहते हैं। तो समय जो है बड़ी महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि if you have lost money you can earn money again and again, but if you have lost time you cannot earn the time once again, therefore the time is very precious in life। तो आपने अपना बहुमूल्य समय वैल्यूएबल टाइम हमको दिया, इसके लिए मैं आपका फिर से हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं आपके प्रति। और मैं आपको एक कृतज्ञता जो पत्र है, लेटर ऑफ ग्रेटिट्यूड है, ऑफिशियली मैं आपको भेजूंगा अपने विभाग की ओर से, अपने कॉलेज की ओर से। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय उत्तराखंड। जय हिंद सर। और सर इससे बड़ी बात क्या हो सकती है सर, सोनिया मैम भी आपको बहुत सारी शुभकामनाएं दे रही है, बहुत सारा थैंक यू बोल रही है उनके काउंसिल मेंबर्स की तरफ से, हमारी तरफ से। कर्नल साहब को और हमको उन्होंने गेस्ट ऑफ ऑनर इनवाइट किया था खेतान इंटरनेशनल स्कूल में, तो इसलिए हम उनको इसके लिए बधाई देते हैं उस अच्छे काम के लिए। उन्होंने कारगिल दिवस पर रखा था कार्यक्रम और हम उनके प्रति हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं, उनका आभार व्यक्त करते हैं। हम एक तरह से उनके ऋणी हैं और आपके भी ऋणी हैं हम मैडम। अरे नहीं सर, नहीं सर, थैंक यू सो मच सर। और अंत में मैं जो है हमारे जो सोल्जर्स हैं उनको मैं एक छोटी सी शायरी में अर्ज करना चाहूंगी उनके लिए। सेशन काफी लंबा है लेकिन ये जो है जरूरी है, हमारा इंडिपेंडेंस डे आ रहा है, लेकिन मुझे कोई दुख नहीं है कि हमारा सेशन लंबा रहा। मेरे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य की बात है कि आपसे इतनी सारी बातें करने को मिली सर। कवि सम्मेलन, ऑनलाइन कवि सम्मेलन डेफिनेटली सर, जी श्योर सर, पक्का सर। तो मैं छोटे से 4 पंक्तियां कहना चाहूंगी। सरहद पर टिकी है उनकी नजर, पल पल रखते दुश्मन देश की खबर, भारत माँ के इन लाडलों को न लगे किसी की नजर। सो जय हिंद, जय भारत सर। थैंक यू सो मच सर।
मैं भारतीय सेना को, भारतीय नौसेना को, भारतीय वायुसेना को और सारे पुलिस डिपार्टमेंट को, पैरामिलिट्री फोर्सेस को जय हिंद। आपको भी जय हिंद, आपकी संस्था को जय हिंद मैडम। जी सर, सैल्यूट टू यू सर। थैंक यू सो मच, नमस्ते, एंड विशिंग यू गुड लक फॉर योर फ्यूचर सर। धन्यवाद मैडम, थैंक यू सो मच। मे गॉड ब्लेस यू एंड योर ऑर्गेनाइजेशन। थैंक यू सर। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। आपने अभी तक जो है ज्वाइन रखे, आपने अपने आप को, आपने इतनी सारी बातें सुनी उपाध्याय सर के बारे में और उनकी जर्नी के बारे में, देशभक्ति के बारे में, प्लस उन्होंने बहुत सारी अच्छी टिप्स दिया टाइम मैनेजमेंट के बारे में, हमारी पर्सनल ग्रोथ के लिए, प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए। सो थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून। 15 अगस्त को मैं फिर से आ रही हूँ एक्सपर्ट्स के साथ, और इंडिपेंडेंस डे मनाते रहेंगे। एंड बी फ्री योरसेल्फ फ्रॉम ऑल द ऑब्जेक्टिव्स। डटे रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट टाइम, टेक केयर, बाय बाय।